Students, in the previous lecture we have discussed the ground state of helium atom problem by the variation method. Today we will discuss about the van der Waals interaction between two hydrogen atoms in their ground states by the variation method. What is van der Waals interaction? Actually, van der Waals interactions are the attractive forces that hold the molecule close together. As two atoms come closer to each other, this attraction increases until they are separated by the van der Waals contact distances. So here we shall calculate the van der Waals interaction energy. Now first we consider this problem by means of the perturbation theory, because it is then easier to see that the leading term in the energy at great separation distances varies inversely as the sixth power of this distance. Let us assume that the nuclei of two hydrogen atoms A and B are fixed in space at a distance r apart, and that the z-axis is chosen parallel to the line through A and B. This is a z-axis. This is parallel to this z-axis. Okay. Now, if r1 is the vector displacement of electron 1 from nucleus A, and r2 is the vector displacement of electron 2 from nucleus B, then the Hamiltonian for the two electron can be written as H equal to H naught plus H prime. अभी हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम इसको थोड़ा वेरिएशन मेथड की जगह पहले हम पर्टर्बेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जब हम इसको पर्टर्बेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो हमारा इंटरैक्शन एनर्जी है, जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में इंटरैक्शन एनर्जी, जो van der Waals इंटरैक्शन एनर्जी आने वाली है, वो प्रोपोर्शनल होगी 1/R⁴ के। तो जब हमको ये पता चल जाएगा तो हमारे लिए ट्रायल वेव फंक्शन चूज़ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, तो इसलिए क्योंकि अब हम पर्टर्बेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, देयरफॉर वी डिवाइडेड अवर हैमिल्टोनियन इन टू पार्ट्स. वन इज अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एंड सेकेंड वन इज द पर्टर्बेशन. In unperturbed Hamiltonian, we will consider the two electrons in non-interacting electrons, so that the perturbation term is like, unperturbed Hamiltonian is like this: H naught is equal to minus H cross square by 2m del 1 square plus del 2 square minus E square upon R1, this is for this electron, and minus E square upon R2, this is for this electron. Okay, now what is the perturbation? There are the interactions are four type of interaction we can consider here. First, that is E square upon R, that is because of these two. Then E square upon R12 because of these two electrons. Then this electron can also interact with the B nucleus. The electron from nucleus A, it also interact with B. So this is E minus E square upon R1B, and similarly minus E square upon R2A. Okay, so we know that the unperturbed Hamiltonian has the solution this: psi 0 R1 R2 is equal to psi 1 0 0 R1 psi 1 0 0 R2. This is the solution. This is for two non-interacting hydrogen atoms in their ground state. So we know that what is the value of psi 1 0 0. We have already known that it is 1/√pi A0 cube e to the power minus R1 upon A0 for this, and 1/√pi A0 cube e to the power minus R1 upon A0 minus R2 upon A0 for this. So now we regard this interaction terms as a perturbation. This is equivalent to assuming that this R, capital R, is very much greater than A0, that is the radius of first Bohr orbit. So now since we are interested in the leading term in the interaction energy when R is large, we expand H prime in powers of 1/R and keep the lowest term. Okay, so now
here also this is as since r is much smaller than capital R, so 1/r1b यदि हम निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, r1b इज मॉड r1 माइनस r, तो इसका क्या होगा, √r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r1 r cos थीटा 1 एंड r cos थीटा 1 इज इक्वल टू, यदि आप इधर से देखें दिस इज एंगल थीटा 1, so the factor of r1 in place of this is cos theta 1, that is r1 cos theta 1 in the direction of z, so it is r1 cos theta 1 is z1 एंड यहाँ से हमने r कैपिटल R स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सो r हो गया बाहर और दिस वन इज़ 1 माइनस 2z1 अपॉन r प्लस r1 स्क्वायर अपॉन r2. देन द r1b what we will get like this, 1 upon r1b 1 upon r1 minus this. Similarly for r2a, if you want to calculate r2a, this is again like this, 1 upon r1 plus 2z2 upon r plus r2 square upon r square. Here r2 cos 180 minus theta 2, because the factor of r2 in the direction of z will be r2 cos, this is theta 2, so this angle is 180 minus theta 2, so r2 cos 180 minus theta 2. So we have written here z2 is equal to this, so this is like this, similarly this, and 1 upon r12 is like this. And if we substitute these values in equation 3, so what is equation number 3, this one, this h prime, so we will get the h prime. So the h prime will be this, तीनों वैल्यूज़ आपने उसमें पुट कर दी सारा. अब इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक जनरल जो हमारा टर्म आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो इतना आता है, ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2z2, दिस इज h प्राइम. हियर द लास्ट टर्म इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स that correspond to the instantaneous configurations of the two atoms. Here the neglected term that vary like 1 upon r to the power 4 are the dipole quadrupole interaction, which we are not interested, and 1 upon r5 terms are the quadrupole interaction, again we are not interested in that term ना. हमको किसके बारे, हमको क्या देखना है, डायपोल इंटरेक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब हमको निकालना है, क्योंकि हम पर्टर्बेशन थ्योरी देख रहे हैं. तो अब हम पहले भी आपने देखा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन द पर्टर्बेशन थ्योरी, इट इज़ सिंपली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन. ये आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, पर्टर्बेशन का फॉर्मूला आपने देखा है ना, क्या होता है वो. यदि हम देखते हैं E(n1) इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ शाई एन कॉन्जुगेट h प्राइम शाई एन डी टाउ. दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन. आपने लास्ट जो क्लासेस थे हमारे लास्ट सेमेस्टर में हमने इसको देखा था. तो इसी तरह यदि हम पर्टर्बेशन से निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, तो यहाँ यदि हम निकालेंगे इसको तो ये क्या होगा, दिस इज सिंपली द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन. तो यदि हम इसको निकालते हैं हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, है ना. दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस हैमिल्टोनियन. अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो कितना होगा ये, बिकॉज शाई ज़ीरो इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ r1 एंड r2, शाई ज़ीरो आपको पता है, एंड h प्राइम इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ r1 एंड r2 सेपरेटली. सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द लीडिंग टर्म इन h प्राइम फॉर द स्टेट शाई ज़ीरो r1 r2 इट इज़ ज़ीरो, बिकॉज इवन ऑड कॉम्बिनेशन का जो इंटीग्रल है वो तो ज़ीरो हो जाता है. सो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ज़ीरो हो गया इसमें इंटरेक्शन एनर्जी के लिए. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ज़ीरो हो गया. इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि ऑल द नेग्लेक्टेड हायर टर्म्स इन h प्राइम हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर शाई ज़ीरो, सिंस दीज टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज spherical harmonics of order different from 0. So the leading term in the interaction energy between two hydrogen atom is the second order perturbation of the dipole term. अब सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, वो प्रोपोर्शनल होता है h प्राइम स्क्वायर के. सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू h प्राइम स्क्वायर, एंड सो इट वेरीज लाइक, बिकॉज h प्राइम किस जो है वो हम देख रहे हैं, दिस इज़ 1 अपॉन r क्यूब के प्रोपोर्शनल है.
तो यदि हम सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे तो वो 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होगा। और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन 0 है, तो हम ये समझ गए कि जो इंटरेक्शन एनर्जी आने वाली है वो सेकंड ऑर्डर करेक्शन में आने वाली है, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1h' के, दैट इज़ 1/r³, 1/r⁶, बिकॉज h' के प्रोपोर्शनल होगी तो 1/r⁶ के। तो अब हमको ये पता चल गया कि हम जो भी टर्म निकालेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r⁶ के। अब हम अपना वेरिएशन मेथड यूज़ करेंगे। यदि मान लीजिए वेरिएशन मेथड में अब हमको शाई चूज़ करना है, सपोज़ हम शाई की वैल्यू चूज़ करते हैं, ये हमको, यदि हमने इस तरह से चॉइस किया, सपोज़ ये जो है सिर्फ प्रोपोर्शनल, सपोज़ शाई जो है वो आर पे डिपेंड नहीं करता है ना, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन आर, सपोज़ इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन आर, तो शाई, अब हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकलेगा, इट इज़ इंटरेक्शन इन दिस शाई h' शाई डेटा। तो यदि शाई आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो जो इंटरेक्शन एनर्जी हमारी जो भी हम निकालना चाह रहे हैं दैट विल भी क्या होगी, ये होगी, क्योंकि h' तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, और इसके अंदर जो भी आएगा सिंपल डीटा, तो ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल निकलेगी इंटरेक्शन एनर्जी। लेकिन हम जानते हैं कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा जो इंटरेक्शन एनर्जी डायपोल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब शाई भी कहीं ना कहीं आर पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, वी कैन से दैट a useful choice for शाई will be one in which there is a term which is proportional to h'। सपोज शाई में हम एक शाई को जो भी माने वो h' के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो जब हम इंटीग्रेशन शाई कॉन्जुगेट h' शाई डीटा निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो इसका स्क्वायर तो होते ही है, तो वहाँ 1/r³ का स्क्वायर हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमको 1/r⁶ का टर्म मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं वी यूज़ चूज़ अ ट्रायल वेव फंक्शन this psi equal to psi 0 r1 r2 1 plus a h prime, because we know there is a variational parameter, so a is a variational parameter here। तो ये हमने यदि चूज़ कर लिया, बिकॉज ये किसके प्रोपोर्शनल से h' के प्रोपोर्शनल है, तो जब हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो कहीं ना कहीं h' स्क्वायर आएगा, सो दैट इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶, जो हमारा इंटरेस्टेड टर्म है जो हमको चाहिए है। So now the expectation value of h, because we know that this psi is not normalized here, so we use this formula that the Hamiltonian expectation value of Hamiltonian, अब ये Hamiltonian हम क्योंकि वहाँ से लिए हैं इसलिए h0 plus h' पूरा लेके चल रहे हैं, ये हमने ले लिया है psi बार दिस h0 plus h' and this ओके। और हम ये जानते हैं कि जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इट इज़ ऑलवेज अ अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, है ना, ये हमेशा अपर लिमिट होगा। इट इज़ ऑलवेज, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा वेरिएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ये हमेशा क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। पर यहाँ क्योंकि हमने h' और इसमें लिखा है, सो इट इज़ E0 plus E2, जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है इससे ज़्यादा ही होगा जो भी निकालोगे आप। सो यहाँ पर हम इसको अपोजिट करके लिखते हैं, वी कैन राइट E0 plus E2 इट इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। अब बिकॉज यहाँ पर देखो एक बार ये h0 के साथ आ जाएगा, ये वाले दोनों टर्म एक बार h' के साथ आ जाएंगे, नीचे आपने इसको स्क्वायर कर लिया। तो सिंपली इसको सोल्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पे अब देखो 1 2 3 4 टर्म ऊपर की और 1 2 3 4 टर्म बाद वाले की, तो इधर 8 टर्म आपके पास आ गई ना, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और नीचे आपके पास 3 टर्म आएंगी। अब यदि हम इसको सिंपल एक सॉल्यूशन दें, तो फर्स्ट टर्म यदि आप देखोगे यहाँ ये क्या है, psi नॉट कॉन्जुगेट h0 psi 0 डीटा। तो h ये हमको पता है h0 psi 0 इज इक्वल टू क्या होता है, E0 psi 0। तो ये E0 तो हमने बाहर निकाल लिया, और डबल इंटीग्रेशन में क्या आ गया, psi 0 बार psi 0, और psi 0 बार psi 0 क्या है, दैट इज़ अ 1, psi 0 बार psi 0 तो 1 ही होगा। सो वी कैन राइट दिस E0 इज इक्वल टू दिस, ओके।
ये E0 हो गया, देन प्लस 2a E0। क्यों? अब ये दो टर्म देखिएगा, इसमें आप देखिए यहाँ पे भी H नॉट शाई 0 है, यहाँ पे भी H नॉट शाई 0 है, तो H नॉट शाई a तो बाहर आ गया, H नॉट शाई 0 E0 हो गया। तो ये यहाँ बाहर देखिए, ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है, तो ये दो टर्म है, इसलिए 2 आ गया और a E0 बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन में ये बचा। फिर तीसरा टर्म आपका ये है a स्क्वायर वाला, है ना, और फोर्थ टर्म इन दोनों को आप जोड़ दो, ये दोनों भी एक से हैं, तो 2a इंटू दिस और प्लस दिस, ये H प्राइम क्यूब है। अब आपको पता है कि H प्राइम क्यूब अगेन इट इज़ एन ऑड फंक्शन एंड शाई 0 इज़ एन इवन फंक्शन, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो दिस विल बी 0। ओके, अब आगे इसको सॉल्व करते जाओ तो आप देखोगे कि ये E0 आ गया फर्स्ट वाला टर्म, ये वाला टर्म कितना हो गया 2a E0 इतना, ये भी कितना हो गया 0, बिकॉज ये क्या है H प्राइम। ये तो हम देख लिए कि फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू है हैमिल्टोनियन की वो तो 0 आ रही है, पर्टर्बेशन के थ्रू हमने देख चुके हैं, तो ये भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो जाएगा, बिकॉज इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसमें बीच में दोनों साइड में आपका H प्राइम आएगा, ये इसको यदि सॉल्व करोगे तो आएगा शाई 0 H प्राइम शाई n H नॉट m देन m H प्राइम शाई नॉट, इस तरह से इंटीग्रल आएगा। तो जो H प्राइम है वो तो 0 है, सो दिस टर्म इज़ ऑल्सो 0। देन हमारे पास ऊपर में दो ही टर्म बचे, क्या बचा E0 प्लस 2a ये वाला, और इसको नीचे से ऊपर लिख लिया, बिकॉज इसमें नीचे भी आप देखिएगा H प्राइम स्क्वायर वाला तो बचेगा, ये H प्राइम वाला तो 0 हो जाएगा, है ना, तो ये 1 हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस में बचेगा, और आगे यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा E0 प्लस 2a इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 माइनस, बिकॉज इस बाइनोमियल थ्योरम आप लगाओगे तो 1 माइनस दिस प्लस डैश 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 आगे हो जाएगा। और ये हमको ध्यान रखना है कि हमको H प्राइम स्क्वायर वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टर्म है, तो उसी में हमको कंसीडर करना है। तो अब ये क्या हो गया E0 प्लस E2 इज लेस देन इक्वल टू E0 प्लस दिस 2a माइनस E0a स्क्वायर, क्योंकि इसको कॉमन निकाल लिया, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया तो बचा 2a माइनस E0a स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस टर्म विल बी लाइक दिस। ओके, सो अब इसको निकालने का क्या तरीका है, एक सेकेंड, पहले हम इसको देखेंगे, ये जो है हमारा E0 प्लस E2 वाला टर्म, इसको देख लेते हैं पहले, है ना। तो E0 टर्म ऐसा आ गया, अब हमको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, पर वो बाद में, पहले हम ये देखें कि ये हमारा यदि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल गया, अब इसको क्या करते हैं हम मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा। मिनिमाइजेशन के लिए फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन है उसको 0 रखना पड़ेगा और एक ही वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए ये मिनिमम हो। तो हम क्या करें, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 रख दो, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 माइनस 2E0a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/E0। इसको हम हमारे इक्वेशन में पुट कर देंगे, कौन से वाले इक्वेशन में, जहाँ हमारा ये आया था E0 प्लस इतना, तो a की जगह हमने क्या कर दिया 1/E0 रख दिए, मिनिमम एनर्जी हमारी आ गई। ठीक, ये मिनिमम एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि H प्राइम अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, H प्राइम जो है वो इतना है, H प्राइम का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया। अब हमको ये भी मालूम है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब भी आप निकालोगे तो इवन ऑड कॉम्बिनेशन के कारण 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा, तो आपने इसको ले लिया। अब सिर्फ ये टर्म बचेंगी, तो हम इसका निकालें एक्सपेक्टेशन वैल्यू पहले। यदि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पहले निकालें यदि हाइड्रोजन के केस में, तो दिस इज मॉड शाई 100 स्क्वायर आर का स्क्वायर, और शाई 100 आर की वैल्यू हमको पता है 1/√πa0
रख दोगे आप, तो एक्स स्क्वायर की जगह, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक हार्मोनिक्स हैं, और तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 3, एक्स स्क्वायर को हम आर स्क्वायर बाय 3 से रिप्लेस कर देंगे, डी क्यू बार को आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई से करेंगे, और थीटा और फाई वाला इंटीग्रल 4 पाई आएगा, तो वो हमने 4 पाई लिख लिया। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका इंटीग्रल फिर से वही आ गया, एक्स टू दी पावर एन ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन अल्फ़ा टू दी पावर एन प्लस 1। एन कितना है 4 रख दिया, अल्फ़ा कितना है 2 अपॉन A0, सो 2 अपॉन A0 5। इसको सॉल्व कर लोगे तो एक्स स्क्वायर की A0 स्क्वायर आ गई। तो सिमिलरली ये इसकी भी आ गई, y1 की आ गई, z1 की आ गई। यदि आप इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं दिस, सो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आप निकाल लो, E4 अपॉन R6 इतना आया, ये आ गया 6A24। यदि हम वैल्यू इसमें रखते हैं वापस E0 प्लस E2 में, तो हमारा ये आ गया 1 अपॉन E0 एक्चुअली है क्या, द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, वो हमको पता है इट इज़ माइनस E0 अपॉन E स्क्वायर अपॉन A0, वो वैल्यू यहाँ रख दें। सो E0 प्लस E2 इज लेस देन इक्वल टू दिस, सो E2 इट इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। So the upper limit of the interaction energy between two hydrogen atom is this by variation method। यदि हम perturbation method से solve करके निकालते हैं तो उसकी lower limit निकलती है, that is E2 is greater than equal to इतना आता है। So हम यहाँ क्या कहते हैं कि perturbation theory and the variation method provides opposite limits for the coefficient of this term। So this is all about the वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन एनर्जी जो हमको निकालनी थी वो इतनी आई है। अब ये होमवर्क आप लोगों के लिए है कि पर्टर्बेशन से कैसे इतनी एनर्जी आ रही है, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन तो आप निकाल चुके हैं, 0 आ गया। सो अब आपको सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन का फॉर्मूला यूज़ करके सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर ग्राउंड स्टेट। ओके।